Viewers, good evening. Thank you for joining us on India Upfront. Asaduddin Owaisi's comparison between the adulteration in Tirupati Laddus and the Waqf reform bill is a classic case of obfuscation, muddying the voters and deflecting attention from real issues. Viewers, by comparing the government's reform push in the Waqf to the unacceptable addition of animal fat in Tirupati Laddus, Mr. Owaisi is attempting to equate two entirely unrelated concerns. Viewers, the Tirupati Laddu controversy is an assault on the religious sentiments of Hindus who consider the sacred offering a symbol of devotion and faith. But in stark contrast, the Waqf reform bill aims to address the egregious issue of land grab and encroachment, which has deprived countless individuals and communities of their rightful property. Owaisi's comparison is not only misplaced but also dangerous because it trivializes the religious sentiments of Hindus who are rightfully outraged by the desecration of their sacred traditions, and it obscures the critical issue of Waqf land governance, which has enabled widespread corruption and exploitation. Viewers, Owaisi has accused the government of targeting Muslims through the Waqf Amendment Bill, claiming it violates Article 14, Article 15 and Article 25 of the Constitution. But the fact is, viewers, that the bill seeks to boost transparency and promote representation and inclusivity in Waqf bodies, including Muslim women and non-Muslims, by sidestepping these critical concerns and resorting to emotive comparisons. Owaisi is doing a deliberate disservice. आप एक बात समझिए, तिरुपति के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है। बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो, मगर आप हमारे धर्म के संस्थानों में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? प्रसाद में आप बोल रहे कि एनिमल फैट आ गया तो गलत है, बोल हम भी मानते गलत है, नहीं आना चाहिए, उनकी आस्था है। मगर यहां पर हमारी आस्था, हमारे धर्म में, ये तो वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम धर्म का हिस्सा है। हमारा बोलना ये है कि जब प्रसाद में वो एनिमल फैट प्रोहिबिटेड है, भाई मेरी वक्फ बोर्ड में आप क्यों पीछे पड़े? मेरे वक्फ बोर्ड में क्यों पीछे पड़े आप? ये तो मेरे भी धर्म का मामला है ना। आप हमारे हिंदू धर्म का प्रसाद है, हम उसका रिस्पेक्ट करते। हम ये बोल रहे कि जो प्रसाद के बारे में सब बात कर रहे हैं, भाई आप वक्फ बोर्ड में देखो क्या करना चाह रही है सरकार। It's just an attempt, another attempt by Asaduddin Owaisi to just merely, garner some attention. The point here is, when we are talking about Tirupati Laddu, it is purely and clearly a mismanagement of the entire thing by the earlier government and a pure and strategical a sort of conspiracy on Hinduism on a whole. My sincere suggestion to Asaduddin Owaisi ji is, please come out of your a world where you have pure hatred for Hinduism and pure hatred for Hindus. भाषा सब एक है, तो घूम फिर करके जो है, कहाँ उसकी बात आ गई, धर्म की बात आ गई, कहाँ समाज की बात आ गई, कहाँ लड्डू की बात आ गई। लड्डू से उसका क्या कंपैरिजन है? मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं वैसे ही आपको बताना चाहता हूं, आप उसकी तुलना वक्फ बोर्ड के साथ करें, उससे भी बड़ी ज़्यादा निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और को कहना चाहता हूं, कम से कम आपको इसी तरह किसी के धर्म के तोड़ने वाली जो बात हो, उसकी तुलना करनी किसी और की चीज़ के साथ, ये बहुत ही घटिया किस्म का बयान है, जिसकी मैं फिर से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। You heard the reactions. Let's quickly open this up. Tuhin Sinha, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. With us is Mr. Harshvardhan Tripathi, senior journalist. Advocate Adil Hasan, the national spokesperson of the AIMIM. Tehseen Poonawala, political analyst. Muhammad Tariq Khan completes the panel, is the national spokesperson of the Samajwadi Party. Adil Hasan, how are the two related, sir? Tirupati Laddu का वक्फ रिफॉर्म से क्या मतलब है? एकदम दोनों से रिश्ता है। एक हिंदू सेंटिमेंट का मामला है, वो हिंदू कम्युनिटी को का सम्मान होना चाहिए। एक मुस्लिम कम्युनिटी का वक्फ का मामला है, वो मुस्लिम कम्युनिटी का सम्मान होना चाहिए। इसमें गलत क्या? आपके तिरुपति के लड्डू में निकला तो हम लोग इसका पुरजोर मुखालिफ करते, गलत हुआ।
ये चंद्रबाबू नायडू साहब जो ड्रामा कर रहे थे, तो 5 साल एक चीफ मिनिस्टर थे, कभी राहुल गांधी को अपना पीर बनाए हुए थे, आका बनाए थे, कभी मोदी को आका फिर से बना लिया। हैदराबाद की गलियों में राहुल जी के साथ घूम रहे थे, तो उस वक्त उनको पता नहीं था कि तिरुपति में उसमें क्या चल रहा है। उसमें बीजेपी का आर.सी. विश्वनाथ एमएलए था, बीजेपी का, उस 25 आदमी का मेंबर में एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं था। क्या कर रहा था नरेंद्र मोदी को, जब भी जरूरत पड़ी थी तो जगन जी उनके हनुमान बने हुए थे, और वहां का एक्स चीफ मिनिस्टर को पता नहीं है, इतना बड़ा संस्थान है दारुसलाम में, एमपी और एमएलए एमआईएम के वो पास बना के देते हैं जो हिंदू विजिटर के लिए अगर जरूरत पड़ता है हम उसकी मदद। जी, आपके लाइन में थोड़ी दिक्कत आ रही है हमें, मैं वापस आऊंगा आपके साथ। तो इन रेस्पॉन्ड टू व्हाट Good evening, everybody. You know, Asaduddin Owaisi's comparison of the Temple Trust with Waqf Board is not only a reflection of his notorious mindset, but also the fact that he is intellectually challenged. Now, let me exactly explain to you why Asaduddin Owaisi is being notorious over here. When it comes to the Temple Trust, what is at stake? The Prasad. What is at stake? The Hindu faith. But when it comes to the self-aggrandizement or the expansionary designs of Waqf Board, what is at stake? Hindu land, Muslim land, as well as Christian land, and I will just explain you with 3 examples. Tamil Nadu's Chiranturai village, a 1500-year-old temple exists over there, and suddenly Waqf Board claims ownership of that entire, village. The Sunni Waqf Board has told the Supreme Court that Taj Mahal should be listed as Waqf property. And finally, in Haryana's Jatlana village, a Gurudwara which has existed for the last 500 years, that entire village has been claimed as a Waqf property. So at stake is not only Muslim property, there is Hindu property, there is Muslim property, and there is Sikh property. And therefore, it is very important for the Waqf Board to not be compared with TTD, where only Hindu faith is concerned. Here, land of every citizen of this country is concerned. And I'm worried you should never invite, Waqf Board members to your studio, because they can claim ownership of the Times Now land also. I want to bring in Tariq Khan. Tariq Khan, you must be very happy today with what Asaduddin Owaisi has said and done, because Akhilesh Yadav a few days ago had compared Mathadhish to mafia. ये भी उसी तरह का एग्जाम्पल है। That was the statement was very specific to Yogi Adityanath, and this is nothing to do with all the Mathadis and the people who are sent or Mathad. We have already opposed Waqf Bill, and our stand is very clear that this Waqf Bill is not in the interest of Muslim peoples or the people of India. You have already asked for advice of the people. More than 1 crore people have already given the advice, and that include Hindu and Muslim, and we should at least respect the wisdom of the people of India. They are Muslim and Hindu. Everybody have their right to give the advice, and they have already given. They have already given. Whenever there is a issue with a particular land, that become a title suit, and that title suit will be held in any court. So it's just a type of fake news is being spread by BJP people that it cannot be challenged and like these things. What will happen to Babri Masjid? That was a Waqf property, challenged, and a temple has been built over there. So this is Mathura. Tariq Khan, in Mathura, let's start with 1 minute. I think we'll come to what you're saying. I want to start by asking you, do you agree with this comparison? असादुद्दीन साहब ने जो किया है, क्या आप उस कंपैरिजन को सही मानते हैं कि वो बोल रहे तिरुपति लड्डू में जैसे एनिमल फैट, बीफ, पोर्क ऑयल, ये सब जो मिला है, वो एक ही बात है जैसे वक्फ रिफॉर्म को पुश कर रही है सरकार? ये एक तरीके का आप इसको ये मानते हैं कि ये गलत है या सही है? उसमें फैट एनिमल होना चाहिए लड्डू में, गलत है या सही है? गलत है ना? गलत है ना? हाँ ना बोल दीजिए, मैं कह रहा हूँ गलत है, आप हाँ ही बोल रहे हैं। सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसका तुरंत ही जवाब दे रहा हूँ। ये गलत है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान राम मंदिर ट्रस्ट का हिस्सा या तिरुपति ट्रस्ट का हिस्सा नहीं बन सकते,
तो क्या जरूरत है नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाने की? क्या जरूरत है? समझाया, पहले ही समझाया मैंने। कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? अच्छा चलिए ठीक है, आप तारिक खान को मैं जस्टिफाई नहीं, मैं तारिक आपको खान को- एग्जांपल, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप बोर्ड की तारिक बात कर खान रहे हैं, मैं अभी को आपको नाम पढ़ के बताता हूं मैं, लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन जी से मैं एक बार पूछ लेता हूं। हर्षवर्धन जी, ये हो क्या रहा है? पहले हमने देखा मठाधीश माफिया कंपैरिजन, अब ये है तिरुपति लड्डू को वक्फ रिफॉर्म से कंपेयर कर रहे हो वैसी। देखिए प्रणय जी, मुझे लगता है कि इस देश में एक फ्रॉड सेकुलरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है और उसकी आड़ में कोई भी कुछ बोलता है बिना सिर पैर की बात, बेतुकी बातें बोलता है। ये वक्फ बोर्ड पूरी तरह से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मसला है, इसमें रिलीजियस कहां से बात आ गई? ये क्या है? अगर हम एकदम इसको स्पष्ट तौर पर माने कि ये जो भी लोग कहते हैं कि भाई हम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, अल्लाह को ये संपत्ति हम देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि गरीब, गुरबा, विधवा, ऐसे लोग जो लोग हैं जिनको यतीम है, जिनको कोई मतलब हाथ पकड़ने वाला नहीं, उनके काम आए। तो क्यों आए? कैसे आएगा काम? काम आएगा जब उस प्रॉपर्टी का बेहतर मैनेजमेंट हो, उससे आप उन लोगों का भला कर सकें। और इतना मतलब ओवैसी साहब इस तरह का झूठ अफवाह फैलाएंगे, ऐसे फ्रॉडगिरी करेंगे, समझ में नहीं आता। अरे भाई, ये किसी मस्जिद के मैनेजमेंट का मसला नहीं, ये पहले साफ साफ समझिए इसको। वक्फ प्रॉपर्टी मैनेज करना और मस्जिद की प्रबंधन समिति में किसी गैर मुस्लिम का होना, मस्जिद की प्रबंधन समिति में गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, और देखिए एक बात और मैं कह दूं, ये गरीब मुसलमान बनाम अमीर मुसलमान है, ये कुछ सत्ता पोषित, और सत्ता पोषित की एक समय नहीं, भाजपा के सरकार है भी, चाहे जो कोई कह ले कोई बदलाव ना हो, लेकिन वक्फ में कौन जाएगा? जो भाजपा सरकार में सटा हुआ मुसलमान नेता होगा वो चला जाएगा। ऐसे ही जब कांग्रेस की सरकार होगी, जो कांग्रेस का बड़ा मुसलमान नेता होगा वो वक्फ में बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार कोई भी रहे, लेकिन जो गरीब मुसलमान है, जो मुसलमान जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए, उसको उस संपत्ति से कोई लाभ नहीं मिलता, नंबर एक। नंबर दो क्या है? जो आप किसी भी जगह दावा ठोकते हैं, आज ही का मसला है, मेरे ख्याल से आप लोगों के ध्यान में जरूर होगा, दिल्ली में वो शाही ईदगाह कमेटी पहुंच गई न्यायालय, एक जज ने खारिज कर दिया, दो जज की बेंच के सामने पहुंच गई, चीफ जस्टिस ने कहा माफी मांगो। ये क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के खिलाफ चले आए, क्यों? क्योंकि सामने शाही ईदगाह की जमीन है, उस जमीन के सामने की जमीन पर नहीं लगाने देंगे। तो वक्फ का मसला दूसरा है। अब रही बात लड्डुओं की, जगन मोहन रेड्डी की सरकार में अगर किसी वजह से, कुछ पैसे की वजह से या कुछ, तो क्या मसला आता है? वहां आस्था का मसला आता है। मुस्लिम प्रैक्टिस क्या करेगा वो हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं बता सकते। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट अलग चीज है, लेकिन अगर कोई कहे किसी मस्जिद का, किसी ईदगाह का, किसी मुस्लिम रिलीजियस प्लेस का, उसका जिम्मा किसी हिंदू को दे दिया जाए या गैर मुस्लिम को दिया जाए, वो बिल्कुल गलत है। इसी तरह से तिरुपति बालाजी में अगर कोई ईसाई बैठ जाए, कोई गैर हिंदू बैठ जाए, तो कैसे काम करेगा? और एक बात मैं बताऊं, मैं जिस शहर का हूं प्रयागराज का, आजम खान मंत्री थे, उन्हीं के वो प्रभारी थे, माघ मेले के हमारे यहां कुंभ हुआ था, उसके प्रभारी थे वो। ऐतराज नहीं किया लोगों ने, प्रबंधन का मसला था। लेकिन अगर वो बताने लगे कि पूजा कैसे करें तो ऐतराज होगा। सामान्य सी बात अगर समझ में आए तो नेता लोग टीवी पर बोलने से पहले अपना जो कहते हैं ना कि ज्ञान, वो थोड़ा सा कम दें। दोनों में बहुत फासला है, साफ साफ समझिए। और ये विशुद्ध रूप से बड़े जो मुस्लिम ठेकेदार हैं, अमीर जो लोग हैं, वो गरीब मुसलमानों का हक मारना चाहते हैं, इतनी सी बात है। और नहीं तो जेपीसी में क्या है, संसद में बहस होगी। जो अभी किसी ने कहा, तारिक ने शायद ने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि जो लोगों की विजडम होगी, पब्लिक की विजडम होगी, उसमें ऐड करिएगा। इसमें कौन सी लड़ाई की बात है? और हर्षवर्धन जी, मैं बस इतना कहता हूं, आपने जैसे कहा कि ये नेताओं को सोच समझ के बोलना चाहिए, मुझे लगता है उनको पता है, लेकिन ये वो डेलिबरेटली मिसलीड करना चाहते हैं क्योंकि उनका काम आसान हो जाता है, लोगों को भटका दो, भ्रमित कर दो। आदिल हसन, हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं, और आप उसको बिल्कुल लॉजिकली और फैक्ट से काउंटर अगर कर सकते हैं तो पूरा देश देख रहा है। मस्जिद एक चीज है, वक्फ इज अबाउट लैंड गवर्नेंस, ये तो प्रॉपर्टी की बात है। इसको आप कैसे टेम्पल बोर्ड से कंपेयर कर रहे हैं? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इतना कोई बचपना है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। मस्जिद
कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा और खानका इस्लाम का एक बेसिक कंसेप्ट उससे रिश्ता है। मेरी मस्जिद का जगह लीगल है और उसका देखरेख कोई मुसलमान ही कर सकता है। किबला किधर होगा, पश्चिम किधर होगा, जनाजा कब्रिस्तान में किधर दफनाया जाएगा, वो मैं निर्णय लूंगा। इमामबाड़ा किसका है मैं जाऊं समझूंगा, खानका मेरा है, कब्रिस्तान मेरा है, दरगाह मेरी है। उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जानकारी की जरूरत नहीं है। वो मेरी चीज और मेरे बाप दादा ने दिया है। आपकी टेम्पल सराइन बोर्ड है, उसमें मैं एंट्री नहीं करना चाहता हूं। आपने गलत किया, आप अपना उसको जो ऑफिसर जो मेंबर है उस पर कार्रवाई कीजिए। बीजेपी का एमएलए भी मेंबर था, अच्छा, उस एक पर बात कोई कार्रवाई बताइए नहीं होगा। ताज, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लोग ट्विटर पे आए दिन पूछ देते हैं, ताजमहल किसके बाप दादा ने दिया था जो आप लोग मांगने पहुंच जाते हैं? सुनिए, मैं 96 करोड़ रुपया ताजमहल से भारत सरकार को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, विश्व का 7वां सबसे खूबसूरत जगह है वो है, उसका पानी चू रहा है, उसमें फंगस लग नहीं गया तो है, पानी पेड़ उग रहा है, पानी लीक हो रहा, तो उसका क्या मतलब है कि वक्त की जमीन है वो? पानी अगर लीक, आदिल हसन ऐसे मत कीजिए। अभी आप बोल रहे थे बचपने की बात कर रहे थे, ये क्या बचपना है सर? उसमें नमाज होती है, उसमें नमाज होती है, वो मस्जिद अंदर में है। तो आप क्यों बेचैन हो जाते हैं? कल तक मुगल को गाली देते थे, वही मुगल का फोटो डोनाल्ड ट्रंप को ताजमहल का फोटो योगी आदित्यनाथ गिफ्ट करते हैं, मुगल को गाली देते हैं, वही लाल किला पर हर्षवर्धन जी क्यों बेचैन हो रहे हैं आप? ये देखिए, ये बचपना समझ नहीं पा रहे हैं आदिल हसन। नहीं, मैं तो कह रहा हूं प्रणेश जी, देखिए आदिल जो कह रहे हैं ये बहुत बुरी तरह से फंस रहे हैं। ये तो बार बार हिंदू कह रहे हैं ना भाई कि हमारे मंदिर में जो चढ़ावा आता है उससे तो सब काम होता है। मंदिर उसी का पैसा सरकार लेती है, न तो मस्जिद का लेती है न चर्च का लेती है। ये आप ठीक सवाल कर रहे हैं। और ताजमहल कोई मस्जिद नहीं है भाई, इतनी तो समझदारी रखो। बचपना खुद ही दिखा रहे हो टीवी पर। और उससे आगे की बात, आखिरी बार कब किस राष्ट्राध्यक्ष को आपने देखा? आप संकट तो यही है ना कि जो लोग आ रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, ताजमहल भी हमारी धरोहर है, लोग जाएं, हम भी जाएंगे, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा लोग काशी, मथुरा, प्रयाग, अयोध्या जा रहे हैं। अब ये अगर आपका संकट है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, और मैं तो बस बिफोर आई गेट इन तहसीन पूनावाला, आदिल हसन, अगर आप ये कह रहे हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां नमाज होती है तो वो हमारी जमीन है, अब नमाज तो सड़कों पे भी होती है, आपकी जमीन हो गई। सुनिए, ये सुन लीजिए, नहीं, आप देखिए, ये इसका जवाब आप दीजिएगा, तब तक सोच लीजिए। तहसीन पूनावाला वेट कर रहे हैं। तहसीन, व्हाट डू यू मेक ऑफ व्हाट ओवैसी हैज डन टुडे बाय कंपेयरिंग द टू? So I'm not going to mince my words. I hope I'm not censored or blocked. Owaisi is an absolute fraudulent politician in my opinion. He's only here to polarize the elections. He wants to badly polarize Maharashtra and make it a Hindu versus Muslim narrative. Harshvardhan ji, I very often disagree with him, very often. But he's right. How can you compare the matter of somebody's faith to the Waqf board? What rubbish is Owaisi speaking? And you speak about your Waqf board if you have to speak. And first of all, it's not his Waqf board. Speak about the Waqf board. Why do you have to bring in a temple in between? Can't we, people of the minority faith, make our points without bringing in Hindus? Why do we have to drag in Hindus into everything? What have our Hindu brothers and sisters done to us that we have to drag them in? What rubbish is this? The Waqf issue is a matter before the parliamentary committee. On one end, Owaisi is polarizing. On the other end, you'll have Nishikant Dubey who's polarizing. Between these two political parties, there's going to be polarization so that Maharashtra elections, I am warning you that they want to create tension. That is why this is going on. Tell me any logical person watching Times Now, whatever your faith, religion, political ideology, political belief, how can you compare a land issue with that of a temple prasad? How is that comparison justified? Except that you want to create a polarization in society. If you want to talk about land or I want to talk about land, why do I have to drag in Hindus? Now, let's come to the Waqf. No, 1 minute. Tehsin, before you go to the next part, I just want to ask you a... But why? No, Tehsin, just hold on. Tehsin, hold on. Okay. On the first part, Tehsin, I think better sense should prevail. And I am right. You can't compare the two. But while you're calling Mr. Owaisi a fraud, what would you tell Tariq Khan of the Samajwadi Party, who is very much part of the India alliance? He seems to agree.
No, listen, there are two specific issues here. One is a demand by various political parties that there should be only Muslims on the Waqf committee. That can be debated. Personally, I am not for it. Personally, my opinion is different. I think we should be a cosmopolitan society. For example, the Ganpati Mandal next to my house. There are Muslims in it, there are Hindus in it, there are Christians in it, there are Sikhs in it. We are a unified society. So this polarization, in my opinion, should not happen. Why should it be a one-way street? Secularism should be a two-way street. If Muslims go to Ganesh temples, Hindus should also be welcome. That's my opinion. But again, I come to the core point. We can answer who's on the committee. I am going one step further. Why should there be government appointed committees, whether in Waqf or whether in the temples? Why can't we free our temples? How long are our temples going to be under government control? And I'm saying this to you because all these temple trusts, what happens is government appoints their nominees. All these Waqf boards, now they gave an example of Uttar Pradesh, Waqf board. The example was given by the BJP spokesperson. No, what's Who's stopping, appointed members in the BJP? what's stopping the Who state goes to governments court? from freeing These temples? people. Who defends If the BJP is not doing it, no, 1 minute. Free If the BJP is not freeing temples, No. you can pin them down and say that, look, the I am Congress saying government free will begin by temples. doing it. Lead by example. I am saying temples should be free. I am saying Waqf board members should be elected. It shouldn't be selected by government. Only in the Waqf few 5 or 10 or 15 families have benefited. The poor Muslim doesn't benefit. Okay, In the poor temple- Muslim in the doesn't temple benefit. areas, it The is poor political Muslim adjustment does that is not done. benefit. This Adil vote will Hasan. go to BJP. This will go to... No! There should be no government control in religion. Religion should be free of government. Why should religion have government in it? Adil Hasan, No jawab temples, dijiye. no land should be under government control. Let there be free and fair elections. Let people come in. इतना प्रवचन जो तहसीन दे रहे हैं उनसे पूछिए कि तमिलनाडु में स्टालिन इनके राहुल गांधी के दोस्त हैं और राहुल गांधी को मशवरा दे कि जाकर स्टालिन को बोले और सब गवर्नमेंट के अंडर में जो तमिलनाडु की मंदिर है उसको छुड़वा दीजिए। और हिमाचल प्रदेश में इनका मंत्री क्या बोल रहा है मस्जिदों के बारे में, मुसलमानों का वोट लेने के लिए है। वायनाड में मुसलमानों ने राहुल गांधी को जिताया था। अब इनकी हरदिल अजीज प्रियंका गांधी वहां जाने वाली है जो मुसलमानों के मुद्दे पर आज तक नहीं बोलती हैं। वो जा रही है, वो 50% माइनॉरिटी डोमिनेट है। वहां पर जहां पर राहुल गांधी जनेऊ दिखाते थे वहां अमेठी चुनाव हार गए थे। जहां पर जनेऊ दिखाते थे। और रेवंत रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, सुबह शाम आरती उतारते हैं ओवैसी साहब के और अकबर ओवैसी साहब के। इसलिए यहां पर प्रवचन देना आसान है। इसको तहसीन को बोलिए कि रॉबर्ट वड्रा का वकील बने, कांग्रेस पार्टी का वकील नहीं बने, नहीं तो रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर से हटा दे। उसके बाद समझ में आएगा कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। Pranesh, I want to make a point here. Pranesh, I want to make a point here. Go ahead, I'm go a ahead. guest on your show. Please don't bring my wife's family in on personal allegations. You have nothing substantial to add. If you have nothing substantial to debate with me, don't bring my wife's family in. It's very unfair. Adil below the Hasan, belt. let's I not don't get bring personal. anyone's personal families inside. That's very Adil below the Hasan, belt. what's It's the not a debate fair है? thing to Waqf do. पे कीजिए. It's not. You argue with me on logic. And my logic Right. is, 1 second. Let me make my logic. My logic is, why, just allow me my logic. Why should temples be run by government? Why should Waqf board appointees be of government? Tehsil, Why what can't is we have the- the what common has man? the Congress Harshvardhan government is a very done? capable man. What, Why very can't well he for be you on to committees say of what has temples? the Why should Congress. government 1 be there? minute. Why Tehsil, can't a common I Muslim- understand your why can't a logic. common- I also don't suspect your intent, but what has the Congress party done to help the cause? They haven't freed Hindu temples. Neither is the BJP doing anything about it. All parties pay lip Both of service. these acts are To in Sinha, what will the correct, BJP but do? both- You know, see, the point over here again needs to be simplified. Since the Waqf board has a mischievous history of unbridled greed wherein they grab land belonging to all communities, it is all the more important that the Waqf board be representative to the maximum level. It should have people from all communities so that there are people within the Waqf board who who rein in the expansionist designs of the Waqf board, who tell the Waqf board members that we can't make unsubstantiated claims over temple lands and Gurudwara lands. I think this is what needs to be understood by both the Congress party and the AIM representative over here. Adil Hasan, what is the problem if non-Muslims are part of it?
Sir, what is the why if the in Kashi board, in Char Dham board, in Tirupati board, in Gaya Mahabodhi board, अरे ये डिफरेंस तो आपको बता दिया हर्षवर्धन जी ने कि मस्जिद और वक्फ अलग अलग है। आस्था और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है? क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर? अरे मेरी मस्जिद है, मेरा इमाम बाड़ा है, मेरा कब्रिस्तान है, मेरी ईदगाह है, मेरा खानका। आप क्यों परवचन दे रहे हैं भाई? आप अपने यही तो आपको बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ बोर्ड इज नॉट अबाउट आस्था। क्यों बेचैन है? अरे आदिल भाई, वक्फ बोर्ड आस्था का विषय नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का विषय। यही तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। इम्प्रिजमेंट को क्यों खत्म कर दिया आपने? सिंपल इम्प्रिजमेंट को क्यों कर रहे हैं आप? ट्रिब्यूनल को अगर वक्फ बोर्ड अच्छा चलिए मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूं। अगर वक्फ बोर्ड एक मस्जिद होती तब आप ये इक्विवेलेंस क्रिएट कर सकते थे, टेंपल ट्रस्ट और टेंपल ट्रस्ट और मस्जिद के बीच। आप एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन के साथ इक्विवेलेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा आदिल भाई एक मिनट आदिल हसन, ये मैं आप बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी सब नाम ले लिया आपने। अब एक नाम सुनिए। केरला में एक चर्च है, सायरो मालाबार चर्च। पता है उन्होंने क्या किया है? क्या किया बताइए। उन्होंने चिट्ठी लिखी है सरकार को, जेपीसी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ रिफॉर्म है ये बहुत जरूरी है और इनको जल्दी लाइए। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने दिया है कि जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं बिलोंगिंग टू क्रिश्चियन फैमिलीज फॉर जनरेशंस, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड ने अनलॉफुली उसको क्लेम कर लिया है और ऐसे और भी उदाहरण है। सर मेरे पास 1000 एग्जाम्पल है जहां पर इनक्रोच दूसरे धर्मों के प्रतिष्ठान है। हमें अपना वक्फ बोर्ड को चलाने का संवैधानिक अधिकार और नहीं प्रतिष्ठान है और अगर वो गलत है, अगर वो इलीगल है, किसी दूसरे के जमीन पे है तो तोड़ दीजिए। कोई नहीं, इस पैनल पे कोई नहीं बोलेगा कि मत तोड़िए। सुनिए इस पैनल पे आदिल हसन कोई नहीं बोलेगा मत तोड़िए। आई विल लेट यू स्पीक। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले ओवैसी जी का एक वक्तव्य है, वो सुन लीजिए। देखिए ओवैसी जी ने क्या कहा था, वक्फ बोर्ड के बारे में ही है, डॉक्यूमेंट के बारे में। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ का यूजर निकाल दिए। ये देखा, असली डर तो ये है हर्षवर्धन जी, ये ओवैसी जी मान रहे हैं कि 1,21,000 प्रॉपर्टी में 1,12,000 के कागज ही नहीं है, तो दिखाएंगे कहां से कागज है ही नहीं। देखिए प्रणय जी, ओवैसी साहब को और भी कई आशंकाएं हैं और वो आशंका बहुत हद तक ठीक है। देखिए किसी भी देश में या तो आप ये मत कहिए कि ये सेकुलर कंट्री है। अगर आप सेकुलर कंट्री कहते हैं, और मैं बार बार ये कहता हूं कि ये फ्रॉड सेकुलरिज्म प्रैक्टिस होता है, अगर रियल सेकुलरिज्म होता तो ये डिबेट ही नहीं होनी चाहिए थी। सारे मुसलमान खुद आते, और एक तथ्य है जिसको बार बार चाहे आदिल भाई हो, तारिक जी हो या फिर ओवैसी जी हो, छिपा लेते हैं। वो क्या है? मुस्लिमों के बीच के ही रिप्रेजेंटेशन सरकार को गए, जिनको हम बड़ी बड़ी संस्थाओं के तौर पर बड़े बड़े, जिसको हम कहते हैं ना कि ये उनकी आवाज है, ये उनकी तरफ से बोल रहे हैं, ऐसे बड़े मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम लीडरान हैं, उन्होंने बाकायदा सरकार को लिखा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। कुछ लोग मुसलमानों की ठेकेदारी लेकर बैठ गए, कुछ लोग उससे लाभ कमा रहे हैं। और अगर इतनी बड़ी जमीन है, आप जरा सोचिए, इतनी बड़ी जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड, और मुसलमान गुर्बत में, मुसलमान एकदम से उनके घर परिवार के बच्चों को कुछ नहीं मिलता, उनके मतलब किसी भी तरह से आप नहीं, उनके लिए अस्पताल नहीं बन जाता, उनके लिए स्कूल नहीं बन जाता, उनको अभी भी मदरसे में वो पढ़ाना है जिससे उनका भला नहीं होगा। होता तो क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में सचमुच जो एजुकेशन सिस्टम है, हॉस्पिटल सिस्टम है, उसको वक्फ ने ठीक कर लिया। 8.5 लाख एकड़ इतनी बड़ी जमीन के मालिक, और उसके बाद ये झूठ बोलते हैं कि रिलीजियस मसला है। रिलीजियस कैसे हो गया? और कोई भी इस देश में, इस देश का संविधान इजाजत देता है कि किसी की भी मस्जिद या किसी भी तरह के उपासना स्थल को कोई छू नहीं सकता, किसी भी।
लेकिन कहीं कोई अवैध तरीके से कब्जा करेगा तो फिर वो किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय का हो, उसके ऊपर कानून काम करेगा। यही भारत का संविधान कहता है। और इसीलिए मैंने सवाल पूछा आदिल हसन से कि अगर ओवैसी जी कह रहे हैं कि हमारे पास पेपर नहीं है, तो इसीलिए शायद तिरुपति लड्डू और पता नहीं और आगे और क्या क्या मिला देंगे। आदिल हसन, दिया जाएगा बोलने आप दीजिए। 1,21,000 वफ की रजिस्टर्ड है, जिसमें 1,12,000 वफ बाय यूजर है। आप वफ बाय यूजर क्लॉज को खत्म करना चाहते हैं। आप अगर वफ की संपत्ति को बचाना चाहते थे तो 2 साल का रिग्रेस इंप्रिजमेंट था, उसको सिंपल इंप्रिजमेंट में नहीं आप करते। कानून को आप सब करते इंक्रोचमेंट का। आप जो अपना नॉमिनेट नहीं करते, बार काउंसिल एमएलए एमपी इलेक्शन से चुनाता है, आप अपना अर्दली को वहां नहीं बैठाते। अगर वो बतलाएं ये बात, पूरे देश के मुसलमानों को ये चिंता है, नरेंद्र मोदी बतलाएं कि अगर नरेंद्र मोदी को इतनी चिंता थी मुसलमानों की, तो सीमांचल में अगर हॉस्पिटल का एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, जामिया को अलीगढ़ को पैसा घट गया बीएचयू के बनिस्बत, सुरजापुरी बिरादरी का जो सेंट्रल ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं मिला, और आप दिखावा करते हैं मुसलमानों की। एक एमपी मुसलमान नहीं, दिखावा करते तो इनसे ना जवाब दीजिए। देखिए ये लोग जो है ना, ये लोग शायद तहसीन भी, पहली बार मैं तहसीन से भी अग्री करता हूं, ये लोग मुसलमान के सबसे बड़े दुश्मन है एआईएमआईएम। इनकी प्रॉब्लम ये है कि जो गरीब मुसलमान है ना, उनकी भी जमीन ये लूटना चाहते हैं, जो हम नहीं होने दे रहे हैं। ट्रिपल तलाक जैसे बिल लाकर जब हमने इस प्रथा को बैन किया, ये कहते हैं हम एंटी मुस्लिम है। अरे इतने सारे जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, भले वो जनधन अकाउंट है, सब में जो है 25 to 35% कवरेज आप निकाल के देखें तो मुसलमानों तलाक को इंटरफेरेंस मानते हैं आप। रिफॉर्म बोलते रहिए, फॉर देम इट इज इंटरफेरेंस। ये मुसलमान महिलाओं while you are calling out AIMIM, मुसलमान महिलाओं why do you think, ये गरीब Tuhin Sinha, let me ask you this, why do you think, why do you think the Samajwadi Party is endorsing what Owaisi is saying? Otherwise they have a problem with Owaisi. पार्टी कंफ्यूज पार्टी है, उनका कोई विचार नहीं होता है टीवी पे आने के पहले। वो कुछ भी किसी भी विषय पर बोलते हैं, और आपने खुद देखा है कभी वो बैक कर देते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, दूसरे प्रवक्ता इनकार करते हैं उससे। तो समाजवादी पार्टी नीड्स टू स्ट्रीमलाइन इट्स थॉट प्रोसेस। हर प्रवक्ता उनका एक अलग लाइन लेते हैं हर विषय पर। तारिक खान, देखिए ऐसा है कि जो कॉन्सेप्ट होता है, पहले समझ लीजिए कपल्ड और डीकपल्ड। तो मस्जिद और जो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में, वो कपल्ड है। वक्फ बोर्ड और मस्जिद, उनको अलग मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी कहा गया कि वो डेवलपमेंट मुसलमानों का नहीं हो पाया। ठीक है, अब आप बताइए, आई एम आस्किंग यू तुहिन सिन्हा, व्हाट, ये जो 9 लाख करोड़ प्रॉपर्टी, हजारों करोड़ की, व्हाट प्लान डू यू हैव इन फ्यूचर कोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पुअर मुस्लिम? प्लीज zero it down 1 to 10. What plan you have exactly correlated with this work property? नहीं तो how many schools? No, 1 minute. तारिक भाई, आपको दिक्कत प्लान की है कि प्लान नहीं है इसीलिए नहीं होना चाहिए? ये क्या प्रॉब्लम है? तो इन सिन्हा, I'll get you to respond to it, but हर्षवर्धन जी wanted to say something. नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन, देखिए मुझे लगता है कि यही डिबेट का मतलब होता है। हम कहीं पहुंचे, और तारिक खान जो कह रहे हैं मैं उससे एकदम सहमत हूं, तो यही तो करना पड़ेगा ना। वक्फ बोर्ड जब होगा, उसमें अगर हो सकता है कि आप भी अपनी सलाह दीजिए। आपको किसने रोका हुआ प्लान देने से? और मैं यही कह रहा हूं, किसी भी डिबेट को हम किसी लॉजिकल एंड तक ले जाएं, यही उसका मतलब होता है। मैं तो एकदम आपसे सहमत हूं कि वो 8 लाख 9 लाख एकड़ जो जमीन है, उसको कैसे वेल मैनेज करे कि उससे लोगों का फायदा हो। कैसे गरीब मुसलमान वो बेहतर स्थिति पहुंचे, उसको जो चाहिए वो मिले। बिल्कुल ये होना चाहिए। देखिए प्रणेश, सबसे दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो साचर कमीशन रिपोर्ट को हर बात पे कोट करती है, साचर कमीशन में यह लिखा गया था कि आपको वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज को लेकर रिफॉर्म्स की बहुत जल्द आवश्यकता है। और मैं समाजवादी पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये इनका ऑफिशियल स्टैंड है? क्या घनश्याम तिवारी भी यही लाइन ले रहे हैं असादुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट पर? या हर प्रवक्ता, जो मैंने कहा, अलग लाइन लेते हैं हर शाम को? नहीं, कोई प्रवक्ता अलग लाइन नहीं लेता है, एकदम सीधी सी बात है। घनश्याम तिवारी भी क्रिटिसाइज करेंगे, असादुद्दीन ओवैसी को समर्थन करेंगे। जो मेरे मुंह से निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह में आपकी जबान नहीं है। मैंने सिंपल सा आपसे पूछा कि आपके पास 10 पॉइंट नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कर सकते हैं? वक्फ बोर्ड की धांधली को समाप्त करने के लिए उसको रिवैम्प करना आवश्यक है, जो मैंने कहा कि साचर कमीशन रिपोर्ट में पिछले 20 साल पहले लिखा हुआ है।
Is there any dispute with this theory that in the name of Waqf, land has been grabbed? No, land has been grabbed by some influential people. There is no doubt about there it. But is there's need also for a lie reform. that there is no relief that can be got. That's also a lie and a misnomer. But I have to say something very important. The total value of the Waqf land is about 1.2, 1.3 lakh crore. If we invest this well, you can get 10,000 to 12,000 crores a year, perhaps more. Look at the benefit the poorest of poor citizens of our country will have, the women of our country will have. Can't we use this positively rather than 10 or 15 families on the Waqf board that benefit? Yeah, from so this? then why block Why reform? are those families so interested? to Tehseen, continue then the why Waqf block board? reform? Let Tell it be Tariq Khan, democratized the Adil process. Hassan, tell people from the community to, not block the reform. We'll have to move on, viewers. We'll have to